اور اس کی ہم 22 سے 25 آیت کو پڑھا ہے، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حقیقی خون سے گناہوں کی معافی۔ یسوع مسیح کا بلڈ جو ہے، یسوع مسیح کا خون جو ہے، وہ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ آمین۔ اور بائبل مقدس کے اندر جو 25 آیت رومیوں کے خط کے اندر لکھی ہے وہ یہ ہے، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ آمین۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اسے خدا نے اس کے خون کے ثواب سے ایک ایسا کفارہ لکھا ہے، ٹھہرایا جو ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہو؟ ہاں جی بولو تو صحیح نا، کی ہوئے؟ فائدہ مند ہو۔ بائبل کہتی اب ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے، ان کے لیے شفا ہے، ان کے لیے زندگی ہے، ان کے لیے راحت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے معجزہ ہے، ان کے لیے برکتیں ہیں، ان کے لیے بہت بہت آشیش ہے، ان کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں اور اس کے خون کے ثوابت سے۔ آمین۔ اور خدا کے کلام ہمیں یہ بیان جو ہے وہ کر چکا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ لیکن ایک اور بات سنیے گا، اور بارے کے لکھا ہے اس کے خون کے باعث اگر ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اگر ہم ایماندار ٹھہرتے ہیں، اگر ہم بلیور ٹھہرتے ہیں، اگر ہمارے اندر کوئی خاصیت پائی جاتی ہے تو صرف اور صرف اس کے خون کے سبب سے ہے جو اس نے صلیب کے اوپر دیا ہے۔ آمین۔ جس کی علامت یہ ہے کہ کراس آج بھی خالی ہے۔ آمین۔ کراس آج بھی کئیاں دی آج بھی اتنے ہی، لیکن کیا لکھا ہے اس کے خون کے باعث۔ اب جو خون جو ہے، اور خون کے لیے جو لفظ عبرانی کے اندر ہے وہ لفظ ہے دامیر۔ کیا ہے؟ دامیر۔ بولو تو صحیح، دامیر۔ اور جو عبرانی کے لیے اس کے لیے لفظ ہے وہ ہے دامیر، اور جب اس کو یونانی میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہیما۔ عبرانی میں دامر، یونانی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہیما، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ خون جو شفا ہو، وہ خون جو پاک ہو، وہ خون جو بے عیب ہو، وہ خون جس کے اندر کوئی خدا دا پائی جائے، اسے کہتے ہیں ہیما اور دامیر۔ ہیما اور کون سا لفظ؟ ہیما اور دامیر۔ اور لیکن یہ جو لفظ خون ہے یا بلڈ جو ہے یا لہو ہے، اور یہ کلام مقدس کے اندر یہ لفظ 400 سے زیادہ پوری بائبل کے اندر استعمال ہوا ہے۔ 400 سے زیادہ لفظ خون استعمال ہوا ہے جو کفارے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آمین۔ اور اس کے بعد یہ شریعت کی کتاب تیسری، ایک کوئی بتا سکتا ہے شریعت کی تیسری کتاب کون سی ہے؟ گننا شروع کرو۔ شریعت کی تیسری کتاب کون سی ہے؟ برا نہ محسوس کرے ہو بھی بائبل کدی کھولی ہوئے تو پتہ لگے۔ ہاں ویری گڈ۔ خروج بھائی دوسری ہے۔ برا نہ محسوس کرو، میں تیرا استاد ہاں بائبل کون سے، لیکن کل آئے بھی بائبل پڑھی ہوئی تو پتہ ہوگے۔ گناہ ناک دے اوول آخر ہو جائیں گے، آخر اوول ہو جائیں گے۔ ہاں جی ہے باہر تنو رٹیاں ہونیاں چاہیے، تن تھا دی دادا رٹیاں ہونیاں چاہیے، رٹیاں ہونیاں چاہیے۔ شریعت کی کتنی کتابیں کوئی بتا سکتا؟ پیدائش، خروج، احبار کی گنتی، استثنا۔ ہاں نکلی مار لو باویں، پر دسو تو صحیح کیا لکھا ہے؟ شریعت کی تیسری کتاب احبار کے اندر اس کے لیے 80 مرتبہ سے زیادہ لفظ خون ہے جو کفارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حزقیل کی کتاب کے اندر یا اس کے صاحب کے اندر لفظ جو ہے کہ 45 سے
ज्यादा इस्तेमाल खून आया है। फिर इसके बाद अब्रानियों के खत के अंदर 20 से ज्यादा मर्तबा लफ्ज खून है। ये वही खून है जो गुनाहों का कफारा देता है, ये वही खून है जो खुदा से रहाई देता है, ये वही खून है और जो बेऐबों को ऐसा है बरी कर देता है। ये वो खून है और जो खुदाओं, पापों, गलतियों, कमियों, कमजोरियों, गुनाहों, बदकारियों, बकारियों, हरामकारियों, झूठ, बदपरस्ती से पाक करता है। ये वो खून है जिसके बारे में पौलुस रसूल अपने खत के अंदर बयान करते हैं, कहते जनाब आला उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया गया जो ईमान लाने से फायदामंद हो। आमीन। कितनी गल मजे दी है। उन्होंने कहा ईमान लाने वाले वास्ते फायदा, मतलब दूसरा नहीं कोनी, जो ईमान लाते हैं और फिर ये खून। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम ये रोटी, हम ये शीरा जब ईमान के साथ खाते हैं, ये इसका खून, उसका गोश्त है। आमीन। जो हमको गुनाहों से पास रखता है, हमें गुनाहों से दूर रखता है। लेकिन अब सवाल यह है कफारी की या जरूरत क्यों पड़ी खून देने की। बहुत सारे मज़ाहिब के अंदर खून बहाया जाता है। और बाइबल मुक़द्दस मैंने एक किताब पढ़ी थी, तो उसके अंदर एक कौम थी, काड़ो कौम। हिंदुस्तान के अंदर वो कौम आई सन 56 के अंदर, और वो एक बच्चे को लेने के बाद उसको खरीद कर लेकर आते। जब खरीद कर लेकर आते तो उसके बाद उसको उसका कफारा दिया जाता था। लेकिन ये कफारा ताहयात नहीं था, ये उसके लिए साल था। शरीयत के अंदर ऐसा है बताया जाता था ये खून कितनी बार बहाया जाता था साल में, कितनी बार, कितनी बार, कितनी बारी, कितनी बारी, कितनी बारी, कितनी बारी। हाँ कोई बात है, 1 2 3 4 5 कितनी बारी, कितनी बारी बहाया जाता है। चल भी थोड़े चलिए कैमरा में कितनी, 4 दफा चले, ठीक है, भी हो गया। हाँ कोई और दसे, कोई गल नहीं, फिर की एक ना। और ये आपको सिखाने कितनी बार बहाया जाता था है। वेरी गुड, खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए। बंदा न पाड़े उन्हें के एक बार उन्हें सुनिया सी साल पहले, ताड़ी बजाओ। साल 1 दफा खून बहाया जाता था, बह जाइए। और साल में 1 दफा, आज 4 में भी कट करो क्योंकि 4 तो छुट्टियां कर दिया, तो पता नहीं भी 4 बारी 1 बारी जिन्नियां छुट्टियां। बाइबल क्या कहती, खुदा के कलाम हमें सिखाता, शरीयत के अंदर 1 बार खून बहाया जाता था, सिर्फ साल में 1 बार। उसके बाद फिर बकरा लिया जाता था। लेकिन बाइबल हमें एक बात सिखाती है, लेकिन ये खून साल में कितनी बार। उंगली चुको, कितनी को तलवार नहीं काट दे लगी, एन चुको, एन चुको, एक रख ले उंगली, आ चुको, एन चुको, कितनी बार। अब काउंट करें, 1 बार। लेकिन ये खून आहद के संदूक कितनी बार फेंका जाता था है। 3, चलो अभी हो गया। आदि कितनी, 5, चलो कोई बात नहीं, ये सिखाने के लिए आपको। अब साल में 1 बार फेंका जाता था। अब ये खून जो साल में 1 बार लेकर जाते थे, और वहां फेंका कितनी बार जाता था, कितनी बार है। 1 ही बार, वेरी गुड। और कोई है को हवा लगी है हमारी, कितनी बारी है, कितनी बारी, कितनी बारी, कितने दस 7 बारी है, 7 बारी, 7 बारी पाया जाता थी। कितनी बारी, इधरों हवा लगी सी, फिर चुप हो गई। लेकिन ये साल में 1 बार खून लेकर जाते थे। उसके बाद ये इधर करें, जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। लेकिन ये आहद के सदूक के अंदर आज भी तुसी पादियां दे जे रस्से बने वेखे होने, वेखे वेखे ना, काले लाल चिट्टे पीले जो जी बंदे ने। लेकिन उसके बाद सरदार का है जो था, और वो चक्कर लगाता, चक्कर लगाने के बाद आहद के सदूक के ऊपर 1 बार, 2 बार, 3 बार, गिनती तो कर लो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार वो ऐसे है फेंका जाता था। और ये आहद के सदूक का जो होता था, वहां हारून का आसा और सोने का मर्तबान और 10 अहकाम वहां मौजूद होते थे। लेकिन ये खून जो था, और ये खून की क्वालिटी ये थी कि साल में 1 बार जो है वो बहाया जाता था। लेकिन यहाँ आहद के सदूक
खून के ऊपर 7 बार फेंका जाता था, लेकिन 7 बार फेंकने के बाद, और वहां ऐसा है अगर सरदार काहिन वहां जाता तो वहां जाते ही जब था तो अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती, अभी तो देखो कोई गलती हो जाती, पर लोग उसे रस्से से खींचते थे वापस, फिर वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का खून जो असली है, जो अबदी है, जो बेऐब है, जो गुनाह से मुबर्रा है, जो गुनाह से पाक है, जो मखलसी वाला है, जो ऐसे नजात वाला है, जो जिंदगी वाला है, जो शिफा वाला है, और जो मोजज़ात वाला है, जो कुदरत वाला है, जो हिकमत वाला है, वो साबे अलूम है, साबे कुदरत है, वो सब कुछ उस खून के अंदर मौजूद है। ये वो खून है जो बेऐब है, जो जिसके अंदर कोई ऐब नहीं पाया जाता। लेकिन ये खून मैं आपको बताता हूं कि नबी जब वहां जाता था, सरदार काहिन वहां 2 पत्थर लेकर जाते थे। कितने पत्थर? लिख लो गल, कितने पत्थर? तोरीम तो ओरीम, तोरीम ओरीम, ये दोनों पत्थर ऐसे हैं नबी के सीने के ऊपर, दिल के ऊपर होते थे, ये सिग्नल का काम करते थे। जी व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती थी, काहिन जब जाता था वहां एक करने के बाद उससे कहता कि खून तुमने 7 बार फेंकना है, और बाइबल मुकद्दस समय ये बताती है कि फेंकने के बाद भी और सरदार फिर अगले साल की तैयारी करता था। ये कफारा फिर कंप्लीट नहीं था, ये साल में कितनी बार, उंगली चुको याद रहेगा था, 1 बार। कितनी बार? इसके बाद फिर बाइबल के अंदर लिखा है, फिर इसको ऐसा है कि लेकिन ये था क्यों? क्योंकि गुनाह जो आदम गुनाह में गिर चुका था, क्योंकि बाइबल कहती सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से गुनाह, बोलो गुनाह, बोलो जी, गुनाह के 4 हिस्से से गिर जाते हैं। गाफ से क्या है? गिरना। जब आदम ने गुनाह किया तो बाइबल लिखा वो असली स्टेटस से, असली जगह से गिर चुका था। कहता खुदा मैं तेरे सामने, हाँ तेरे सामने आ नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, क्योंकि मैं गिर चुका हूं। और पहली बात गाफ नून अली आगे है गोल, गुनाह। और गाफ से क्या था? गिरना, और नून से होता है नफरत। जब आप गुनाह में गिर जाते हैं आप खुदा के कामों से नफरत करते हैं, आप खुदा के लोगों से नफरत करते हैं, आप कलाम को आपका सह दिल नहीं करता। कई बार क्या चर्च में आए, एक मेरा दिल करता है सियामा, एक दिल करता है नामा, भी तेरे 2 दिल किधर आ गए? खुदा ने देख बनाया। लेकिन जब गुलाम की लाइफ के अंदर है कि वो गुलाम कार से गिरना, उनसे नफरत, जब सर गिर जाता है उसके अंदर नफरत आ जाती है, वो खुदा के कलाम से तब ऐसा प्यार नहीं करता। आगे है अलीफ, क्या है? एक अलीमत वाला नहीं, कल्ला जी डंडा, ऐसा है, इसका मतलब था ईमान। जब आप गुनाह में लिखा सबने गुनाह और खुदा के जलाल से, और जब गुनाह किया तो फिर ये ईमान से भी गए। फिर आगे है हे, क्या है? हे से मतलब था हाथ धोना, हाथ, जिंदगी से हाथ धो बैठना। हवा से पूछा हाँ भाई तुम किधर हो? कहते हम तो नंगे हैं, हम आपके सामने नहीं आ सकते क्योंकि हमने गुनाह किया। और ये गुनाह की दीवार जो बन चुकी थी, जो 70 फुट लंबी और 4 इंच मोटा एक पड़ता था, ये दीवार थी। और जब कोई काहिन जाता था वहां वो कफारा देकर जाता था। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया तो ईमान लाने से क्या हो? ऊंची बोलो, पिछली लाइन बोलो, फायदा। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है ये कफारा आम नहीं था, ये खून बहाना आम नहीं था। ये खून आपको पता है कि आप कितनी बार फेंका जाता था? कितनी बार? 7 बार। अब यीशु मसीह का खून भी 7 बारी बहा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन वो कैसे बहा? क्योंकि आप जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, कोई कलवरी के जान जाते हुए खून बहा, दाढ़ी के लोचा का खून बहा, कंधों का ताज का क्या खून बहा, और आपका समरी के अंदर थे खून बहा, लेकिन आपके नेसा में लगाएगा खून बहा, आपके हाथों पांव पे की लगाएगा खून बहा। लेकिन बाइबल कहती है जब ये सारा सिलसिला पूरा होने वाला था तो आप सलीब के ऊपर मसलूब किए गए। मसलूब करने का लास्ट काम रहता सी। जब आपने ये कहा, आपने ये कहना था, आपने 7 कलमात बोलने के बाद आपने एक लफ्ज कहा कंप्लीट
हुआ, तमाम हुआ। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है वो हैकल का पर्दा और जो 70 फुट लंबा और 4 इंच मोटा था, मेरे आका के खून के अंदर इतनी कुदरत है। और जैसी नेजा लगता है और नेजा लगना ही था और वहां से पानी में खून बह निकला और हैकल का पर्दा फटे जाता है। सारी जोर की ठोको यार, जोर से जोर से। और फिर बाइबल मुक़द्दस हमें एक और बात बताती है, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, जब भी ये पर्दा जो काहिन वहां जो थे ना वो भागना शुरू हो गए। पूरी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ था। तारीख बताती यरूशलेम के अंदर अंधेरा नहीं था। हालेलुया। सब दुनिया अंधेरे के अंदर थी, सब लोग मुसीबत में थे, दुख में थे, कर्म में थे। जो काहिन वहां थे उन्हें देखा ये पर्दा बगैर जिसको 2 बैल जोड़ी इधर लगती है और 2 इधर लगती है और लगने के बाद इसे खींचते हैं, लेकिन ये फटता नहीं है। लेकिन मेरे आका के खून की कुदरत इतनी है क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बताती है अगर वो उसका खून का एक कतरा, एक बूंद आपकी लाइफ के अंदर आ जाए, आपका परिवार चेंज, आपका खानदान चेंज, बरकतें आपके घर में और मरीज के मंसूबे फिनिश, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बताती है उसका खून हर तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर यूहन्ना रसूल का पहला खत पढ़े, लेकिन उसका खून हमें तमाम गुनाहों से। आप गड्डी मंगी जो मंगी, खून तो मंगे नहीं कदे। सानू अपना खून भी दे, अच्छा मोबाइल दे दे, अच्छी बीवी दे दे, अच्छे शोहर दे दे, अच्छा घर दे दे। कभी आपने ये कहा आप उसके खून को मांगेंगे, बाकी सब चीजें इनाम। हालेलुया। खुदा के कलाम हमें क्या सिखाता है? और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी उसके बारे में वो आप अपनी रास्तबाजी ज़ाहिर करे। आप उससे खून तो दे दिया, लेकिन अब वो आपके लिए ये कहता है, इसलिए यूहन्ना रसूल जब ऐसा है बपतिस्मा दे रहे थे यरदन के अंदर, तो एक बात वो कह रहे थे। और जब सब लोग वहां मौजूद थे, अगर फकीर और फरीसी बहुत सारे लोग पानी का बपतिस्मा ले रहे थे, तो बाइबल मुक़द्दस ये बताती है, खुदा का कलाम ये सिखाता है। लेकिन यूहन्ना रसूल रूह में था, वो रूह में यीशु मसीह को देख रहा, कहता मैं तुम्हारे बीच में खड़े हुए एक शख्स को देखता हूं और जिसे तुम नहीं जानते और जिसकी मैं जूतियां के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूं, लेकिन वो मुझसे मुकद्दम है, मुझसे जोरावर है, मुझसे पावरफुल है, मुझसे कुदरत वाला है। लेकिन एक और बात वो बताता, कहता अगर तुम उस पर ईमान लाओ तो मैं एक बात बताता, कहता देखो ये खुदा का बड़ा हाथ चौके रखो सी हो, हाथ चौके रख जेरे हाथ रहन दे ओदी फड़ेगा यीशु। यूहन्ना रसूल कहता अब रोया में है, कहता देखो ये खुदा का बड़ा, देखो ये खुदा का, ये किसका बड़ा है? ये ना लंगड़ा बड़ा है, ना टुंडा बड़ा है, हाथ दाई रहने चाहिए, ना टुंडा है, ना अंधा है, ना पैरा है, ये बड़ा है। ताली में जाओ जोर दी, ये खुदा का बड़ा है जो चाहा। बोलो बोलो सही चर्च होंगे हो कि तो सौन वाली चर्च नहीं होंगे। बोलो देखो ये खुदा का जो आप पहले भाई जो दुनिया तो सही आज बोलो रे, जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, जिसके बारे में लिखा है बाइबल मुक़द्दस बताती है अगर आप उसके खून को अपने लाइफ के अंदर ले लेते। आपको बताना चाहता हूँ कोई कलवरी के ऊपर, लास्ट बात आप सबों के लिए, कोई कलवरी के ऊपर, और जब हजारों साल पहले, एक और बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का खून कभी काला नहीं हुआ, कभी पुराना नहीं हुआ। नहीं तो खून आज भी देख रहे तो एक दिन के बाद आए ब्लड काला आस्ता तक खत्म हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का खून कभी पुराना नहीं होता, वो काला नहीं होता, वो ब्लैक नहीं होता और वो अपना असर नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो बेऐब है, वो बेगुनाह है, वो पाक है, वो पवित्र है, वो मुत्की है, वो परहेजगार है, उसके अंदर क्वालिटी है। और एक कौम रहती थी वहां,
और जब एक कौम वहां रहती थी वो सारी ऐसा था कोड़ी थी और चंद सालों के बाद बारिश हुई और कोहे कलवरी के बीच जहां यीशु मसीह को मसलूब किया गया था वहां एक सुरंग थी और सुरंग के अंदर एक खानदान रहता था और बेनहोर का खानदान, और वो बेनहोर का खानदान सब कोड़ी था और कोड़ी होने के बावजूद चंद हजारों साल बाद बारिश हुई। वो बारिश के अंदर वो कतरे जो पहाड़ के ऊपर गिरे थे, वहां से पानी और खून है तो कतरा पहाड़ पे कुत्ते इंजे दिखा देखा कि जब उससे जान दी तो ऐसा है चट्टाने क्या हुआ, तिड़क गई। हालेलुया, उनमें रास्ता बन गया। लेकिन ये खून वहां मौजूद था, लेकिन बारिश होने के बाद वहां सुरंगों के अंदर खून जाता और खून, और जब उन्होंने देखा ये पानी की ये क्वालिटी बदल चुकी है और उनको वो सारा खानदान बेनहोर खानदान जो था वो सारा कोड़ी था, लेकिन जैसे उसने उन पानी से नहाया और उन सब का कोड़ जाता है। ये क्वालिटी है यीशु के खून की, सालों बाद भी वो वैसे का वैसे ही। आमीन, यही क्वालिटी है। अगर आप उसके खून को मांगेंगे अब इसकी जरूरत नहीं, आपको आंख भी मार जाए। आमीन, कई बार तो डेले काटता होता है, काटता डेले या नहीं है, वो बोलो काटी को हाँ को डेले किसी ने कटने होते है। कई बार हमें डेले दिखाता है, लेकिन जब आप उसका लहू मांग ले वो आंख भी नहीं हिला सकता। आमीन, क्योंकि बाइबल कहती है, मैं बाइबल मुकद्दस पे ईमान रखता, अब ईमान रखते लिखा उसका खून हमें तमाम गुनाहों से, ऊंची बोलो पाकवारी बड़ी एक ले होंदे हो। और इब्रानी के खत के अंदर उसका नाम आप उसके 12वीं आयत के अंदर लिखा है, 12वीं 13वीं 14वीं, इब्रानियों 9 बाब, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अपनी खलासी कराई, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से सारी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे मुर्दा दिलों को और कामों से क्यों ना तुम्हें पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत की जाए। हालेलुया, जिंदा खुदा की क्या की जाए, इबादत की जाए। मेरी बहन मेरे भाई, उसके लहू के अंदर इतनी कवालती है, इसलिए यूहन्ना रसूल कहता जनाब उसका लहू हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आज आपसे कुछ भी नहीं मांगना, न गड्डी, न जॉब, न गाड़ी, न कुछ भी नहीं मांगना, आज सिर्फ उसके लहू की कुदरत को मांगना है। जब आप ये मांगेंगे सब कुछ, चेक मिल जाए ना, चेक, फिर भाई मशीन खरीदो, फिर कपड़े वाली खरीदो, कपड़े सीना वाली खरीदो, कपड़े धोने वाली खरीदो, इंजन मोबाइल खरीदो, साउंड खरीदो, जड़ी आज आपने चेक लेना उसके लहू का। हालेलुया, क्योंकि लिखा है उसका लहू हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। खुदा हम सबको बड़ी बरकत